Team. What's up, guys? So we got second again, second in the world. We kept our position from the last year. It's not bad, being second in the world. Of course, I wanted the gold medal, and congrats to Ryan for winning the third time. And next year. But I just want to thank everyone for supporting me, for the love you guys have shown me. I will do my best next year, to bring 100% and to win it. Hopefully, we're not done, we're not done. The job is not done. So next year, hopefully, this one is gonna get into a gold color. But for now, it is what it is. Second place, not bad. I'm very grateful, very thankful for everyone. Thank you for all the support, for the love. Hello guys, right, so just wanted to check in with you. Don't really know where to start other than we did it. I cannot believe we did it. So I'm officially 3 times men's physique Mr. Olympia champion, and even saying that still doesn't feel real. I started this prep obviously 16 weeks ago. We called it a legacy prep because that's exactly what I thought this was and this is to me. Obviously winning the first title was amazing. It was a justification of all those years. It was worth it. The second one was proving to the world about the first one wasn't a fluke and that I was worthy of winning that first title. And then this one is about cementing my legacy in the world of bodybuilding, and I really feel like I've achieved that now, and I'm over the moon. I can't tell you how I'm feeling right now because I actually don't know how I'm truly feeling right now. Everything is just a blur. I've obviously not been to sleep yet. I even went down to the gym, celebrated in a couple of bars last night, and then I just got home, couldn't sleep. I knew I wasn't going to sleep, so I just got changed quickly and went straight to the gym. And it sounds madness, but it was my way of decompressing. I just played with the weights. It wasn't about the training. It was more about just getting away from the chaos, getting away from everything, and just going to the place I love the most, which is the gym. It's the place I can just mentally switch off and just take in everything. And I think it's going to take a long time to sink in, this one is. Today is about spending time with my wife, my team who are out here with me, and obviously just being very grateful and appreciative of where I am right now in my career, in my life, and I couldn't be more happier. And just want to say thank you to each and every one of you, the people who have supported me, not just on this prep, but my whole career, my whole journey. It's been absolutely unreal, and I'm very fortunate to do this as my job. I live and breathe bodybuilding. I've been training 22 years. I've lived the bodybuilding lifestyle for most of that, competed for 16 years, and it's never got boring, it's never got old. Every year it brings new excitement, brings new challenges, and I'm here for it all day long. So yeah, I'm going to end it there because I can ramble on and I don't want to bore you any longer. I just want to say a huge thank you from me to each and every one of you who has supported me, and I'll be doing obviously posts throughout this week and catching up with you guys as we go along. But again, speak to you soon. Take care and thank you. Alright guys, so 2025 Mr. Olympia is over और फाइनली मैं टेक्सास पहुंच चुका हूँ. सुबह मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट थी लास वेगस से टेक्सास की, और मैं अभी पहुंचा हूँ. तो आई गॉट टाइम टू टॉक टू एवरीबॉडी बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे डीएम्स, बहुत सारे मेंशंस मेरे सारे भाइयों के पड़े हुए. मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा सबको बिकॉज इतना ज़्यादा बिजी था मैं सब चीज़ों में कि मुझे टाइम ही नहीं मिला. तो मैं सोचा क्यों ना सबके लिए एक वीडियो बनाऊं. सो फाइनली आई गॉट दिस मेडल. बहुत ही ब्यूटीफुल मेडल है ये पार्टिसिपेंट मेडल है, और मुझे ये देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने कुछ लाइफ में अचीव किया है यहाँ पे आके. सो चैंपियनशिप इज ओवर. चैंपियनशिप के बारे में आपको बताऊँ तो इट वॉज ग्रेट इवेंट. मतलब स्टैक लाइनअप था. 79 एथलीट थे आई बिलीव, 79-75 एथलीट्स टोटल. और सैडली हम लास्ट कॉल आउट में आए हैं, और बहुत सारी मिस्टेक्स हुई मेरे से डेफिनेटली. जैसा बॉडी में एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा आई थिंक स्टेज पे नहीं आया. जो चीज़ें, जो रिजल्ट
मैं चाहता था कि ऐसा आएगा, और डेफिनेटली नहीं आया। फर्स्ट ओलंपिया था यार, डेब्यू ओलंपिया में आप क्या ही कर सकते हो, और क्या ही आप मतलब कैसे ही अब क्या ही कर सकते हो। नई कंट्री है, नए लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, बट स्टिल आई केम हियर, आई डिड माई बेस्ट। मेरे पूरे लोगों को बहुत बहुत थैंक यू है इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिखाने के लिए। मैं आपको चीज़ बता दूं, जब मैं कॉम्पिटिशन खेलने जा रहा था ना स्टेज पे, तो मैं 1 मिनट के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं अकेला compete करने जा रहा हूँ। इट्स फील लाइक मैं पूरी अपनी फैमिली, अपना देश, अपनी कंट्री, सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सब मेरे साथ चल रहे हैं। सो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार, इतना प्यार देने के लिए। देखो, बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, बट विल डेफिनेटली टॉक लेटर जब मैं इंडिया में आऊँगा। और ये वाला कंपटीशन तो खत्म हो गया, इस साल का ओलंपिया तो खत्म हो गया है, अभी टारगेट है नेक्स्ट ईयर का ओलंपिया। तो डेफिनेटली मैं प्रेप को कंटिन्यू करने वाला हूँ टिल द मुंबई शो भी खेलेंगे। वो 23 नवंबर को होने वाला है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है इस वीडियो बनाने का कि आई वांट टू से थैंक यू टू एवरीबॉडी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मेंशन किया, जिन्होंने प्रेयर्स भेजे, जिन्होंने कमेंट्स करे, और मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा बिजी था। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था, रात को मैं अराउंड 9-10 बजे सो जाता था। उस टाइम पे मैं पूरा टाइम बस बिजी ही रहता था। सो जब आप मिशन पे रहते हो, जब कंपटीशन पे होती, सब चीज़ें बहुत कॉमन है, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, आपको फ़ोन से दूर रहना पड़ता है। इवन मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाया, मेरी गर्लफ्रेंड को मैं टाइम दे नहीं पाया। तो ये सब चीज़ें होती है, और यही एक स्पोर्ट्स का एक नियम है कि आप जितना अपने आप पे फोकस करोगे उतना लाइफ में ग्रो होंगे। बट आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक्स एवरीबडी फॉर लविंग मी, सपोर्टिंग मी ऑलवेज। स्पेशल थैंक्स टू माई फैमिली, मेरे मॉम डैड, एवरीबडी। फ्रीडी सर इज माई फैमिली, सिद्धांत भाई इज माई फैमिली, एवरीबडी, जितने लोग थे सबने बहुत सपोर्ट किया। माई गर्लफ्रेंड अदिति, थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड अंडरस्टैंडिंग। मम्मी पापा को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ। ये 3-4 लोग हैं जिन्होंने लिटरली मेरे साथ में प्रेप किया। जैसे मैं प्रेप कर रहा था ना, साथ में ये लोग भी प्रेप कर रहे थे। और जहाँ पे यूएस में जिस दिन डे 1 से यहाँ तक आज 15वां डे है, तब से लेके अभी तक फ्रीडी सर और फ्रीडी सर के पापा ने मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया यहाँ पे, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे लगता है कि अगर फ्रीडी सर यहाँ पे नहीं होते, डेफिनेटली मैं इस शो को नहीं कम्पीट कर सकता था, ना ही मैं चीज़ों को इतनी इजीली मैनेज कर सकता था, ना ही मैं इतना बढ़िया फॉर्म ला सकता था। मुझे लगता है फ्रीडी सर ने मेरे एक एक मील, एक एक माइक्रोज, एक एक वर्कआउट सेशन, एक एक कार्डियो सेशन का ध्यान रखा है उन्होंने। और आई एम लिटरली ब्लेस्ड कि आई हैव अ ब्रदर लाइक हिम, और इतना प्यार करता है मुझसे, इतना प्यार करता है अपने बॉडी बिल्डिंग के गेम से। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, उनके फादर, जो उनके पापा बोलता हूँ। एक एक मील मेरा बना के रखा उन्होंने, मतलब हैट्स ऑफ टू देम कि यार इतना प्यार बॉडी बिल्डिंग के लिए मेरे लिए। आई एम ब्लेस्ड। और मैं ये उनकी जो एहसान है, मैं कब, आई डोंट नो मैं कब उसको कंप्लीट कर पाऊंगा, मैं कब उसका पे बैक कर पाऊंगा। मुझे लगता नहीं मैं कर पाऊंगा इस जन्म में। सो फ्रेंड्स सर, थैंक यू सो मच फ्रॉम माई हार्ट। पापा, आई लव यू। उसके बाद मेरी फैमिली, मॉम एंड डैड, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मेरी गर्लफ्रेंड अदिति, उन्होंने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे पुश किया पूरे प्रेप में, और एक पॉजिटिव माइंडसेट मुझे ऑलवेज दिया। एवरी मॉर्निंग मुझे एक चिट उन्होंने भेजी थी यहाँ पे, और मैं उसको ओपन करता था और मैं अपनी चीज़ों के लिए निकल जाता था। सो इतने सारे एफर्ट जब आपको फैमिली की तरफ से आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बात करेंगे सिद्धांत भाई, थैंक यू सो मच। आपने एक सारी चीज़ों का ख्याल रखा। ऑन द वीडियो कॉल आप खुद यहाँ पे आ नहीं पाए, बट सारी चीज़ें इंडिया से यहाँ तक सारी कर रहे थे जल्दी। यहाँ पे टाइम का बहुत डिफरेंस था, उसके बाद भी वो कॉल टाइमिंग लगा के मुझे कॉल करना, सुबह गाड़ियों के लिए गया है कि नहीं पूछना, वर्कआउट के लिए कब जाएगा पूछना, सब चीज़ें सही हो रही है कि नहीं हो रही है। सो एज ए कोच नहीं कहूँगा, बट एज ए ब्रदर, एल्डर ब्रदर, उन्होंने बहुत सारा ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद मेरे स्पॉन्सर्स, जिन्होंने ये पूरी ट्रिप मेरे को, मतलब इस ट्रिप में अगर मुझे फाइनेंशियल इन 4-5 लोगों ने हेल्प नहीं की होती, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए मिस्टर ओलंपिया के स्टेज तक पहुंचना इज वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज मैं आपको बताऊँ, ये पूरे प्रेप में मुझे 10 से 15 लाख रुपए आराम से लग चुके। उसके ऊपर ट्रैवल का एक्सपेंस अलग, टिकट का एक्सपेंस अलग, बहुत सारी चीज़ें थी। और मेरे लिए ये सब बहुत बड़ी बात है, इतने सारे पैसे इकट्ठा करना, इन्वेस्ट करना इज वेरी बिग थिंग फॉर मी। सो आई वांट टू थैंक यू सूरज भैया, करण भैया, जो हमारे ट्रांसफर न्यूट्रिशन के ओनर है,
फिर उसके बाद यश सर है हमारे, यश कावरा, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था इस ट्रिप के लिए। अमित भैया हमारे जो MOF के ओनर हैं, जो नोएडा में उनका ब्रांच है, उन्होंने मुझे हेल्प करी। हमारे KFS फिटनेस जो केतन भाई हैं, उन्होंने मुझे हेल्प करी। और बहुत सारे लोग हैं यार, मतलब ऐसे सबने ही मुझे हेल्प करी है। मैं अभी सबका नाम लूंगा तो डेफिनेटली वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बट जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट के बिना ये चीज पॉसिबल नहीं थी। गले में अगर मैं मेडल लेके बैठा हूँ या पार्टिसिपेंट का मेडल भी लेके बैठा हूँ तो ये आपके वजह से है, और आप सभी के वजह से है। आप लोग मेरी फैमिली हो, और ये मेडल मैं आपको देना चाहता हूँ आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग मी। और जितने मेरे भाई लोग महाराष्ट्र से है, जितने मेरे भाई लोग सारे अदर स्टेट से है, कंट्री से है, कंट्री के बाहर से है, जिन्होंने सपोर्ट किया, दिल से थैंक यू, दिल से सैल्यूट है आप सभी को। क्योंकि आपको पता है कि कितना हार्डवर्क लगता है, आपको पता है कितना डेडिकेशन लगता है, कितनी करेज लगती है यहाँ तक आने के लिए। और इस साल जो चाहता था वो नहीं हुआ, बट डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा बेटर करूंगा। बिकॉज अभी मैं भी अभी ऐसा हो ना कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता चली है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करनी है, और नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली अब चीज़ें नहीं होगी। और बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी। और किसी का नाम अगर लेना रह गया है तो आई एम सो सॉरी। हाँ, यस, आई वांट टू से थैंक्स टू निखिल दादा, जो हमारे निखिल चौगुल है, जो एयर इंडिया के पायलट है। और उन्होंने न्यूयॉर्क से मुंबई से न्यूयॉर्क की जर्नी मेरी इतनी ज़्यादा मैं डिप्लीटेड था, मैं जीरो काप पे था, उन्होंने इतने अच्छे से ख्याल रख के मुझे वहाँ से अपने साथ फ्लाइट में बैठा के, वो खुद फ्लाइट अटेंड कर रहे थे और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वहाँ से उन्होंने मेरा ख्याल रखा। सो थैंक यू सो मच। सो इतने सारे लोग हैं, उनको दिल से थैंक यू है यार। आपके बिना ये सब पॉसिबल हुआ है, आपके बिना ये सब पॉसिबल नहीं होता, आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। और जितने हमारे इंडिया में यूट्यूब चैनल्स है, जो मीडिया चलाते हैं, जिनके पेजेस है, सबको थैंक यू। आप लोगों ने सारी चीज़ों को दिखाया लोगों को कि हाँ भाई, इंडिया से कोई लड़का मनोज पाटिल गया है, सुनिल गिल गया है और कम्पीट करने वाला है। आपने बहुत तारीफ करी, आपने हमारा हौसला बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू। और मेरी पूरी फैमिली, जितने लोगों ने मेरे साथ में रह के, मेरी बहन, मेरा भांजा, मेरे जीजा जी, मेरे एवरीबॉडी, मतलब जितने लोगों ने मेरे लिए इतना भी कुछ किया है ना, उसके लिए मैं तहे दिल से थैंकफुल हूँ आप सभी का। और गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। ऐसे लाइफ में हम ग्रो करेंगे, साथ में डेफिनेटली ग्रो करेंगे, तो लाइफ में डेफिनेटली साथ में ग्रो करेंगे, तो डेफिनेटली लाइफ में साथ में आगे बढ़ेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। डेफिनेटली मुंबई पहुंच के फिर एक बार आपसे इंटरेक्शन होगा लाइव में, आराम से बातें करेंगे। जो आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। 16 अक्टूबर को मैं डेफिनेटली मुंबई में पहुंच जाऊंगा, 15 की मेरी फ्लाइट है यहाँ से। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। और ये मेडल मेरे तरफ से मेरे सारे प्यारे देशवासियों के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। Your second place finisher, $200,000 to Honey. 2 pair.